Hello students, today I am going to introduce about some important questions related to chapter work and energy. Now the question number 1, name the commercial unit of measurement of energy. Commercial unit means बड़ी unit कौन सी है बेटा? किलोवाट आवर. Okay, तो kilowatt hour is the commercial unit of measurement of energy. Now the second question is, what do you mean by kilowatt hour? Means 1 kilowatt hour that can be defined as, देखो बेटा 1 kilowatt hour, it means 1 किलोवाट जो पावर होती है दैट इज़ यूज फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए यूज़ की जाती है. तो वहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर. 1 kilowatt hour can be defined as the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance of power rating 1 kilowatt is used for 1 hour. Okay. Now the next question is, name the two biggest unit of power which is bigger than the watt. watt से भी बिगर होनी चाहिए. तो बेटा एक तो होता है 1 मेगावाट. 1 मेगावाट होता है बेटा 10⁻6 वाट के इक्वल होता है. 10⁻6 वाट के इक्वल होता है. ओके. और एक होता है बेटा 1 किलोवाट. 1 किलोवाट होता है 10⁻3 वाट के इक्वल होता है. ओके. So these are the two units which is bigger than the watt. Now next is define the term watt. अब आपको पता है बेटा पावर होती है वर्क डन बाय टाइम टेकन. वर्क होता है जूल और टाइम होता है सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड जो है इट मीन्स 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज़ द यूनिट ऑफ पावर वाट. ठीक है. तो 1 वाट इज़ द पावर ऑफ एन appliance which work at the rate of 1 joule per second. 1 जूल पर सेकेंड जो काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. ठीक है. और पावर की यूनिट क्या है? वाट. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी वाट्स इक्वल टू 1 हॉर्स पावर. 1 HP. 1 HP किसके इक्वल होता है बेटा? 746 वाट के इक्वल होता है. ओके. तो 1 हॉर्स पावर जो आवर्स पावर है, हॉर्स पावर होती है बेटा, ये इसको हॉर्स पावर बोलते हैं. HORSE, हॉर्स पावर, दैट इज इक्वल टू 746 वाट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name the physical quantity whose unit is watt. Answer is power is the physical quantity which unit is S. अब power आपने पता है rate of doing work is called as power, means work done by time taken. So its unit is 1 watt. Now what is the power of the body which is doing work at the rate of 1 joule per second? 1 watt is the power of a body that working at the rate of 1 joule per second. तो 1 watt जो है इसकी यूनिट होती है. तो आप सीधा बताओगे 1 watt is the power of a body that working at the rate of 1 joule per second. Okay. Now the next question, a body does 1200 joules of work in 2 minutes. Calculate its power. अब work done is given, time taken is means this is 2 minute. तो 2 मिनट को बेटा चेंज करो, 2 × 60, ये आपको सेकंड में चेंज होगी. सेकंड में चेंज होने पे ये आपका आंसर आ गया 120 सेकंड. अब पावर निकालनी है. पावर है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन. अब पावर इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 120, दैट इज़ 10 वाट. तो जो पावर है दैट इज़ 10 वाट. ओके. Now the next question is, these are the 2 marks questions which are very important for your exam. State the relation between kilowatt hour and the joule.
डिफाइन वन वर्ड। देखो किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है बेटा, किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर। अब इसको 1000 वाट को हमने लिख दिया 1000 जूल पर सेकेंड, आवर को हमने चेंज कर दिया सेकेंड में, तो 16 × 60 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ओके, जब हमने इसको किया 336 आ गया और 30 ये और 2 यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁶ जूल। ओके, अब हाउ विल यू डिफाइन द वन वॉट, वन वॉट मीन्स पावर इज इक्वल टू W/T। It means the power of an agent which can 1 joule of work in 1 second। 1 जूल काम 1 सेकेंड में जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर इज़ द एस मीन्स व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर। तो जो वाट होती है SI यूनिट होती है पावर की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल दैट अ बॉडी बी इन एक्सेलरेटेड मोशन अंडर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी yet no work is being done by the forces? Explain your answer giving suitable example। okay, इस केस में अब हम क्या बताएंगे कि yes it is possible when a force is perpendicular to the direction of motion। because बेटा क्योंकि जो जैसे मून है, moon revolving around the earth under the centripetal force of attraction of the earth, but earth does not do any work on the motion of the moon। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मून जैसे अर्थ की तरफ रिवॉल्व करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है यहाँ पे, बट अर्थ कभी भी काम नहीं करती मून के मोशन के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वर्क। हाउ इज वर्क मेजर्ड एंड व्हेन इज वर्क डन बाय अ फोर्स नेगेटिव। तो वर्क क्या है, वर्क को हम कैसे बोलेंगे कि इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट displaces it through a certain distance। suppose this is the object, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई इसकी। इट मीन्स इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपका S है। ठीक है, तो इट इज़ मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम वर्क को डिफाइन करेंगे F इंटू में S। okay, and second question is when is work done by a force negative। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव तभी होगा बेटा जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है जब वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ओके, तभी हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द फॉलोइंग केसेस। सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 35,000 किलोमीटर। अब बेटा कोई भी है, अगर आपका सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो जिस पॉइंट से चला था वहीं पे जाके एंडिंग हो गई। इट मीन्स वहाँ पे जो वर्क डन हुआ दैट इज़ ज़ीरो, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन्स अब W किसके इक्वल होता है, W इज़ इक्वल टू F इंटू में S। अगर हमारे पास फोर्स आपको गिवन है और डिस्प्लेसमेंट आपकी जो है ज़ीरो है, इट मीन्स आपकी जो वर्क डन है दैट विल आल्सो बी ज़ीरो, तो W आपकी ज़ीरो आ जाएगी। Now the next is a stone of mass 250 gram is thrown up through a height of 2.5 meter.
then how will you calculate the work done by the force of gravity? In this case, mass is given, that is present in gram, it is converted into kg, 0.25 kg, height 2.5 meter, and acceleration due to gravity, that is 10 meter per second square. How will you calculate the work done? Work done is equal to F into में S. F क्या है? mg. S क्या है? h. तो ये आ गया 0.25 मल्टीप्लाई z मीन्स 10. ये 10 आ गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हाइट है आपकी 2.5 एंड द आंसर इज 6.25 जूल. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mass of 10 kg at a point A on a table. It is moved to the point B. Suppose this is the object. ये point A है, इसका mass है 10 kg और ये ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो गया पॉइंट नंबर B तक. If the line joining A and B that is horizontal है, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. अब इस केस में क्या बेटा, जो वर्क डन है दैट विल बी जीरो. क्यों होगा? बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. दैट्स वाई इट्स वर्क डन इज ज़ीरो बिकॉज W इज इक्वल टू F इंटू में S. F इंटू S. अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. Now the next question is the potential energy of a freely falling object decreases progressively. Does is violate the law of conservation of energy and why? कह रहा है अगर पोटेंशियल एनर्जी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की डिक्रीज हो जाती है तो क्या वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? In this case, the energy can neither be created nor be destroyed, but it can transfer only one form to another form. तो जो एनर्जी होती है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा. बट कभी भी वो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है हमारे सिस्टम की दैट विल रिमेन कांस्टेंट. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है इट मीन्स इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके. अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है बेटा तो किसकी वजह से होगी कि हाइट का लॉस हो गया है. ठीक है. सेम इज़ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो बॉडी की वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. तो अगर ये दोनों चीज़ें ही हैं, मान लो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है बट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं होगा बिकॉज जो एनर्जी है सिस्टम की दैट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज what are the various energy transformations that occur when are riding a bicycle? जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है? सबसे पहले देखो बेटा, जो भी हम फूड खाते हैं तो फूड से केमिकल एनर्जी मिलती है. अब वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? हीट में. ठीक है. और आफ्टर हीटेड इट चेंजेस इनटू मस्कुलर एनर्जी. ठीक है. लेकिन जब हम पैडल लगाते हैं तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है दैट इज चेंजेस इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके. ये होता है. तो मतलब हम सीधा बताएंगे केमिकल जो एनर्जी होती है वो चेंज होती है किस में? मस्कुलर एनर्जी में. मस्कुलर एनर्जी. और जो मस्कुलर एनर्जी है जब हम पैडल लगाते हैं तो वो किस में चेंज होती है? मैकेनिकल एनर्जी में. ठीक है. वो चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में. ओके. नाउ नेक्स्ट इज
Does the transfer of energy take place when you push a hug rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? कहता है क्या एनर्जी ट्रांसफ़र होती है जब हम क्या करते हैं, किसी भी हग रॉक को पुश करते हैं। ठीक है, तो बेटा एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि जब हम उसको पुश करते हैं तो वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। सो वहाँ पे जो एनर्जी स्पेंड होगी दैट इज़ यूज टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ द रॉक। ओके, वो इसलिए यूज़ होगी ताकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम किया जा सके। ठीक है, तो एनर्जी कोई भी वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a battery light a bulb, describe the energy changes involved in the process। देखो बेटा इस केस में क्या है कि जब इलेक्ट्रिकल सेल जो होती है बैटरी के अंदर वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होगी हमारे बल्ब के फिलामेंट के थ्रू, तो वो फर्स्ट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी, पहले वो हीट में चेंज होगी और हीट एनर्जी से किस में चेंज होगी, लाइट में चेंज होगी। ओके, हीट एनर्जी से लाइट में चेंज होगी। तो इस तरीके से ये एनर्जी जो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर, बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल सेल्स है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, सो हियर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। Now the next question is, an object of mass m moving with constant velocity v, how much work should be done on the object in order to bring the object to rest। देखो इस केस में क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट हुज मास इज m, ये अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इसमें कितना वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए। तो बेटा जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो हम काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की उसी के अकॉर्डिंग। तो वर्क डन टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इनिशियल जो है आपकी v हो जाएगी, फाइनल हमें रोकना है रेस्ट पोजीशन पे तो हम v मानेंगे। तो इसमें हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन जो आएगा दैट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि जो आपका v है ये तो बेटा ज़ीरो बन जाएगा, और ये क्या है u v है, v के इक्वल है, तो इट मीन्स ये आपका बचेगा w इज़ इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ओके, now the next question is, name the transformation of energy involved in the following cases। First, when a body is thrown upward, अगर बॉडी ऊपर जाती है, कोई भी बॉडी आपने नीचे से ऊपर फेंकी, सपोज दिस इज़ ग्राउंड और ये आपकी हाइट पे गया, तो इसमें क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ओके, सेकंड है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल, अगर ऊपर से नीचे फेंक दी हमने तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, थर्ड है कोल बर्न, जब कोयला जलता है तो कोयले में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ओके, व्हेन ए गैस बम्स, इसमें क्या होगा, गैस को जब हम जलाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी इट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। ओके, एंड फिफ्थ इज व्हेन द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, हाइट से वाटर गिर रहा है, इट मीन्स जब हमारी कोई भी चीज़ हाइट से गिरती है तो पोटेंशियल एनर्जी इट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब कोई भी चीज़ हाइट से गिरेगी तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है,
एनर्जी में। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ आर द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेटेड। देखो, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द रिलेशन k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ये है। अब इसमें क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस बाय m। अब इसमें आप दोनों साइड ऊपर और नीचे डिवाइड करोगे तो ये हाफ, ये बन जाएगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइड बाय m, यही होगा आपका। ठीक है, अब इसमें हम एम वी को क्या मान लेंगे, p, तो ये आ गया हाफ इंटू में p का स्क्वेयर डिवाइड बाय m बन गया। अब हमें निकालना है बेटा इसमें p। अब p निकालेंगे तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m k, ke, 2 इज़ द काइनेटिक एनर्जी, k इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो p क्या है बेटा, मोमेंटम है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप क्या है, p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2me। ओके, 2m k भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को आप ke भी लिख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज what is the amount of work done by a force when a body moves in a circular path। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो यहाँ पे कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू में एस कोस थीटा। कोस थीटा क्यों लिखा, ये एंगल है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, अगर बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इट मीन्स इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो। जहाँ से गया था वहीं पे जाके ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो बेटा हम वर्क डन में यूज़ करेंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो हमारे पास ये सारा का सारा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा फोर्स से, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो वर्क डन भी हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इट मीन्स अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा। ओके, तो सर्कुलर पाथ में हमारी सीधा जो है ये फॉर्मूला लगता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मार्क्स क्वेश्चन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर अ मंथ ऑफ 31 डेज। देखो बेटा, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी बिल से है। ठीक है, इफ़ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एज स्पेसिफाइड। तो उन्होंने कहा है 31 दिन के लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। अगर मान लो ये डिवाइसेस जो हैं ये स्पेसिफाइड की हुई है। 3 बल्ब जल रहे हैं, 40 वाट के हैं, 6 घंटे जलते हैं। 4 ट्यूबलाइट हैं, 50 वाट की हैं, 8 घंटे जलती हैं। एक टीवी 120 वाट का है और 6 घंटे चलता है। ठीक है, गिव द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ 2.5 पर यूनिट। तो रेट पर यूनिट के हिसाब से इसने गिवन है, तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है पावर को आप लिखते हो वर्क डन बाय टाइम, इसको एवरेज पावर को आप लिख सकते हो जितनी वर्क डन मीन्स एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी हुई डिवाइड बाय टाइम। यहाँ से आप ई निकाल लो, ई निकालोगे तो बेटा ई इज़ इक्वल टू पी इंटू में टी। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए निकाल लेंगे हम, E1 इज इक्वल टू पी इंटू में टी। अब पावर कितनी है, फर्स्ट 40 वाट है। ठीक है, तो ये आपने लिखा किलोवाट में चेंज करना है, 0.04 इंटू में 6 घंटे जलता है। तो पावर आपकी गिवन है वाट में, 6 घंटे ये जलता है, टाइम भी गिवन है। कितने बल्ब है, नंबर ऑफ बल्ब, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 बल्ब है। तो ये आपका आंसर है 0.72 किलोवाट आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका पूछा है कि भाई 4 ट्यूबलाइट्स हैं, 50 वाट की हैं और 8 घंटे जलती हैं। तो सेम फॉर्मूला E इज़ इक्वल टू पी इंटू में टी, ये आ गया। अब आपके पास देखो
P की वैल्यू अब 50 वॉट है तो ये आ जाएगा आपका 0.05 वॉट आ गई। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम आपका 8 घंटे है तो 8 आवर्स लिखोगे आप इसको। टोटल नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स कितनी है, दैट इज़ 4, तो मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आंसर आ जाएगा 1.60 किलोवाट आवर। अब आपका सी पार्ट रहता है। सी पार्ट में देखो आपको टीवी का पावर गिवन है, आपको टाइम गिवन है, तो ई कैसे निकालेंगे, पी इंटू में टी होता है। ठीक है, तो 120 इंटू में 6 दैट इज़ 0.72 किलोवाट आवर। ओके, अब सबकी हमने एनर्जी निकाल ली। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी हमने निकाली, तीनों को ऐड कर दो, ये आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब आपको पता है 21 दिन के लिए निकालना है हमें, तो कॉस्ट ऑफ 31 डेज, ठीक है, 31 दिन का कैसे निकालेंगे, जितना रेट है उसको एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब रेट आपका जितना भी आया 3.04 आया, आपके सामने ही आया है, इनटू में एनर्जी कितनी है 2.50, और कितने डेज़ के लिए निकालनी है 31 डेज़ के लिए, तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा 235.60। ओके, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। नाउ सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। देखो बेटा, a light body and a heavy body that have same kinetic energy, which one will have the greatest momentum? आपको पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, √2m k इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इट मीन्स यहाँ पे जो आपका मोमेंटम है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ m। तो जो हैवियर बॉडी होती है उसका मोमेंटम क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लाइटर बॉडी। ओके, क्योंकि बेटा इसमें अगर आप डबल लोगे तो ये भी इसका पावर में हाफ हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हैवियर बॉडी हैज़ मोर मोमेंटम एज़ कम्पेयर टू द लाइटर बॉडी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव द सेम मोमेंटम। अगर अब मोमेंटम सेम है तो किसकी एनर्जी ग्रेटर होगी, तो इसके आंसर क्या आएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ओके, जैसे ये आपका वो फॉर्मूला था, p इज इक्वल टू √2m। यहाँ से बेटा काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, p²/2m आ जाएगा, वेयर p इज सेम फॉर बोथ द केसेस। here the kinetic energy k is proportional to m। ठीक है, तो लाइटर बॉडी हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू हैवियर बॉडी। तो इस केस में हमारा क्या होगा, जो हल्की बॉडी होगी उसका क्या होएगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ बॉडी हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। एक्सप्लेन करना है, क्या किसी बॉडी में एनर्जी होती है बिना मोमेंटम के। देखो बेटा, होती है ऐसा। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी पोजीशन जो होती है वो आपकी ज़ीरो पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे, इट मीन्स वहाँ पे मोमेंटम ज़ीरो होता है। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी तो होता है। मास तो उसका कुछ ना कुछ होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किस इक्वल होती है, उस केस में काइनेटिक एनर्जी भी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके द्वारा होती है, इज़ ड्यू टू द पोजीशन के द्वारा होती है। तो हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। तो इट मीन्स इट नो, जो टोटल एनर्जी आएगी आपकी बेटा, वो टोटल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी। ठीक है, इसमें काइनेटिक एनर्जी तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी बट पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट बिकम ज़ीरो।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ बॉडी हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग एनर्जी? क्या किसी बॉडी में मोमेंटम होता है बिना एनर्जी के? तो इसमें भी यस आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर हमारी एनर्जी ज़ीरो हो गई, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगे ज़ीरो के। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, इट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका कुछ भी मोमेंटम हो सकता है, चाहे उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो। नेगेटिव एनर्जी पे भी उस इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम होगा। बट if the body must be in motion then it will shows the kinetic energy। ठीक है, तो इट मीन्स उस बॉडी का भी क्या होगा, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम है तो विदाउट हैविंग एनर्जी हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।